morning, students. Very good morning to all of you. Yes, so today we will continue with the next part of our revision schedule, that is the work power energy. So yes, in the last lecture we have seen up till now NLM, right? So what was NLM, and before that we learned kinematics. So before starting with work power energy, just an introductory part. Key work power energy, what is it? See, first we learned kinematics. Kinematics, what was that? About motion. We are talking about in mechanics. What we are doing? Motion. We are studying motion. So in motion, what is that view in kinematics part of the mechanics? In kinematics part of the mechanics, what do you learn? You learn the maths of the motion. That means you now learn, if you know the position, time at certain situation, then after certain amount of more time, then what would be the position? If you increase the values of time, then what will be the position after some time? So you are dealing with the whatever mechanics you see around, you are putting maths to it. That is related to kinematics equation. Yeah, yes. So we have three vector laws, three vector equations for that by Galileo's. S is equals to ut plus half at square, v equals to u plus at, and v square equals u square plus 2as, right? These three equations help us to produce the relationship of the motion, right? Wherever the what is the time, what is the acceleration, what is the displacement, all these things. Furthermore, then we learned about the next part in the motion, that is the qualitative analysis. Kinematics was quantitative analysis. In mechanics, in NLM, we are studying the qualitative analysis. What is qualitative analysis? Means we are studying who is taking the responsibility of this motion. So it's nothing but force. Okay, it's nothing but force, which we learned in the second law of thermodynamics, that any motion that is going on happening in your surrounding would exist continuously, would exist by its own. So तसंच राहील. रेस्टवर असेल तर रेस्टवरच राहील, मोशनमध्ये असेल तर मोशनमध्येच राहील, unless and until you call some external thing like force. Okay, so who is taking the responsibility of the change in motion? That is force. Okay, so what is it, the value? Its value is given by second law, that is whatever the acceleration is there, and you multiply it with mass quantity, then you get an amount which is equivalent to what is called as force, and that quantity takes the responsibility to change the motion. Okay, that we call it as force. And what happens? This is in the direction of the motion, along the direction of motion, along the direction of momentum. What is it? Force. So we learned about force. Then in third law, what did we study? We studied that whatever force you see in the surrounding, that cannot exist by its own. It cannot exist singly, right? You need another pair for it. That is called as what? Force exists in pairs. तो वहाँ पे एक अलग सा फोर्स होता है, वो रिएक्शन फोर्स बोलते हैं उसको. तो हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होता है. इक्वल एंड अपोजिट होता है तो क्या होता है? दिस इज ट्राइंग टू बैलेंस इट. Okay, its discovery was very useful and beneficial in learning the science of rockets. Okay, rocket science, what you can say. तो रॉकेट साइंस में क्या होता है, हमें लगता है कि वो एग्जॉस्ट कंबशन नीचे हवा को पुश करता है तो वो ऊपर जाता है. बट इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स कंबशन फ्यूल इग्नाइट्स, कंबस्ट, एंड इट थ्रोज द गैसेस downside, and that means what? It's changing the combustion, that is the fuel, that is its mass is changing with respect to time. Velocity is also changing now. So whatever velocity that is coming out, fuel, so mass into velocity upon time, this quantity, that means this quantity is telling you force. So that is means force is acting downside. But what is Newton's third law say? That force cannot exist in one direction alone. It needs to be balanced with some force. अलग ऐसे ही कोई फोर्स नहीं बना सकता. बनाता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल एंड अपोजिट बैलेंसिंग फोर्स होना चाहिए, फिर भी वो साइमल्टेनियसली कोएग्जिस्ट कर पाते हैं फोर्सेस. तो इसका मतलब वो रॉकेट को जब नीचे फोर्स लगता है तो नेचुरली ऊपर फोर्स प्रोड्यूस होता है, दैट लिफ्ट्स द रॉकेट अपवर्ड्स, एंड रॉकेट कीप्स ऑन प्रोपेलिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विदाउट इवन देयर इज एयर, और इवन इट कंटिन्यूज टू गो ऑन इन वैक्यूम. Yes, isn't it interesting that in vacuum also the rocket can move up without there, like for example हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ सीढ़ी पे चढ़ना हो तो हमको ग्राउंड का हेल्प लगता है ना, तो ग्राउंड का हेल्प लगता है. अगर किसी पेड़ पे चढ़ना हो तो वो सपोर्ट का हेल्प लगता है, तो उसको हम खींच के नीचे ऊपर जाते हैं. पर ऐसा रॉकेट में कहाँ है कोई पकड़ने वाला जो उसको ऊपर ढकेले? कोई नहीं है ना. वैक्यूम, हवा भी नहीं है वहाँ पे, वैक्यूम है. तो इसका मतलब क्या, जब वो छोड़ता है नीचे तो एज अ रिजल्ट वो तभी ऊपर जाना लगता है. This is reaction force. This was very interesting. But now, in this lesson, work power energy, we are just going to see whatever is the output of the mechanics, its effective analysis. Quantitative analysis हुआ, qualitative analysis हुआ, उसका output क्या हुआ? What is its effect? So its effect is nothing but work done. जो काम हुआ होता है, like for example कुछ movements हुआ,
यहाँ पे कुछ चीज़ें हुई, तो उसका जो कुछ भी एनालिसिस आपको दिखा, बाद में आउटपुट इफेक्ट दिखा, तो उसका आउटपुट को मेजर करना मतलब वर्क होता है. व्हाट इज़ वर्क? वर्क इज जस्ट द आउटपुट ऑफ व्हाट? आउटपुट ऑफ वॉट एवर यू सी इन द मोशन. लाइक फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हमें मेजर करना है, तो येस वी हैव मेजर्ड इट डिस्प्लेसमेंट. नाउ हु इज रिस्पॉन्सिबल? फोर्स. तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ने क्या किया, वहाँ पे कुछ चीज़ें मूव करी. तो क्या हुआ उसका मेजरमेंट? तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वो क्या हुआ? ओ दैट इज द आउटपुट. सो आउटपुट वी मेजर इट एंड कॉल इट एज वर्क डन. आउटपुट वी मेजर इट कॉल इट एज वर्क डन. सो हाउ दैट कैपेबिलिटी हैज़ कम? ओ इट वॉज मूविंग अलॉन्ग लाइक इट रिवर बह रहा है, तो उसके ऊपर अपने लॉक्स ऑफ वुड रखा. तो लॉक्स ऑफ वुड रखने पे क्या होता है, वो वुड तो बहते बहते जाता है ना. मतलब वर्क डन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फोर्स की वजह से. तो वो कैपेबिलिटी आई कहाँ से आई? तो कैपेबिलिटी कहाँ से आई? जब वो नदी बहता है तो उसके साथ वो मोशन एनर्जी कैरी करता है. क्या करता है? मोशन एनर्जी. मीन्स व्हाट? एनर्जी बाय द वर्च्यू ऑफ मोशन. सो दिस एनर्जी बाय द वर्च्यू ऑफ मोशन इज व्हाट? काइनेटिक एनर्जी, राइट. सो काइनेटिक एनर्जी हम कहते हैं. तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से वर्क डन होता है. सो व्हाट डू वी कॉल वर्क डन एज कैपेबिलिटी टू डू वर्क. ओके, एनर्जी इज कैपेबिलिटी टू डू वर्क. सो वो जो एनर्जी आपको दिखता है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट हैज कम फ्रॉम सम सोर्स ऑफ एनर्जी व्हिच वी कैन कॉल इट एज काइनेटिक एनर्जी. सो जैसे काइनेटिक एनर्जी होता है, बाय वर्च्यू ऑफ मोशन में से अलग अलग टाइप्स के भी एनर्जी होते हैं. पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, यस मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, thermonuclear energy, chemical energy, all these types, solar energy and all these things. Okay. Now we are going to see types of work done, है ना. वर्क डन के टाइप्स देखेंगे हम. Yes. What are the types of work done, है ना. Yes. So type works. इंट्रोडक्टरी पार्ट हमारा हो गया. तो वर्क डन के टाइप्स देखेंगे. तो ये वर्क डन इज मैग्नीट्यूड मैक्सिमम ओनली व्हेन दे आर एक्ट अलोंग इन सेम डायरेक्शन. मतलब क्या? अगर फॉर एग्जांपल ये हमारा प्लेटफॉर्म है और ये प्लेटफॉर्म पे एक चीज़ है, ये है मार्कर. तो ये मार्कर को मुझे यहाँ से यहाँ लाना है. तो मैं क्या करूँगा? मैं ऐसे पुश करके यहाँ पे लास्ट वर्क डन हो गया हमारा. मैं यहाँ से पुश करने की वजह से ये यहाँ पे आ गया, तो वर्क डन हुआ फोर्स की वजह से. पर मैं इसको ऐसे पुश करके भी ला सकूँगा यहाँ पे. मैं इसको ऐसे पुश करके भी ला सकूँगा, है ना. तो व्हाट हैपेंस इन दिस प्रोसेस? So when you can apply force in any direction, then also work is done. But when is work done maximum? So when work is done maximum only when the forces and the displacement happens to be in one direction only. मतलब कि दोनों अगर एक साथ होते हैं तो भी वर्क डन हमारा मैक्सिमम दिखता है. मतलब क्या कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज प्लेटफॉर्म. द प्लेटफॉर्म. तो ये प्लेटफॉर्म पे ये ऑब्जेक्ट है, हाँ, इसका मास m. और यहाँ पे हमने एक लगाया फोर्स, एक लगाया फोर्स. तो ये फोर्स लगाने की वजह से ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है s. डिस्प्लेसमेंट हो रहा है s. लेट अस टेक. तो ये भी चीज़ है. लेट अस टेक 5 मीटर्स होगा, 5 मीटर्स होगा और ये 2 मीटर्स होगा. तो 5 मीटर्स इंटू 5 मीटर्स इंटू 2 मीटर. तो वर्क डन इज गिवन बाय फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. वर्क डन इज गिवन बाय फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो ये कितना होता है? हमेशा देखो 5 into 2, मतलब 10 joules was the work done. 10 joules was the work done. But see, when 10 joule of work is done by this body, then you see that force and displacement both are in same direction. ना, displacement भी यहाँ जा रहा है, force भी यहीं पे जा रहा है. दोनों एक साथ एक ही डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन में, इसलिए वर्क डन मैक्सिमम होता है. मतलब क्या होता है? 10 joules होता है. Are you getting this? Yes. So what is work? Work is done when force and displacement are acting on a particle and they both are in same direction. But हमेशा in same direction ऐसे बोलना थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा. मैथमेटिकली भी ये नहीं सोच सकते. तो हमने क्या किया? इसको ये इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई किया. क्या किया कि अगर हमारी सिचुएशन अलग है तो मतलब क्या? फोर्स यहाँ से यहाँ लगा, फिर भी ये बॉडी लेटर से यहाँ से आए, यहाँ पे आ गया है. तो अभी जब हम यहाँ से यहाँ पे बॉडी को पुश करते हैं, we are trying to apply force from in this direction, then displacement is happening in forward direction. Displacement is happening in forward direction. ये बात सही है. लेकिन देखो क्या होता है? फोर्स यहाँ पे लग रहा है, उसको
उसका एक ही कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो रिस्पॉन्सिबल है इसको आगे लेने के, क्योंकि ये फोर्स जैसे हमने वेक्टर्स में पढ़ा, ये फोर्स दिस इज कंपोज्ड ऑफ टू वेक्टर्स, उसको हम कंपोनेंट है ना, एक होगा हॉरिजॉन्टल वेक्टर और एक परपेंडिकुलर वेक्टर। तो ये दोनों वेक्टर्स कंपोनेंट्स है ये मेन वेक्टर फोर्स के, और उसमें से सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेक्टर है वही रिस्पॉन्सिबल है पॉइंट को आगे धकेलने के लिए। क्यों? क्योंकि ऊपर से तो नीचे धकेल रहा है तो ये आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे रिएक्शन फोर्स है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस है, ये फोर्स और ये फोर्स दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। ये फोर्स इसको यहाँ से यहाँ पे मूव करेगा, तो ये फोर्स क्या है, इसको यहाँ से नीचे मूव कर सकता है, पर अगर नीचे करे या ना करे, हमारे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट सिर्फ f हॉरिजॉन्टल से ही होगा, मतलब कौन f x इसको बोलते हैं हम, f y इसको बोलते हैं, f x को हम क्या बोलते हैं, ये थीटा को बोल दो f cos थीटा, और ये किसको क्या बोल सकते हैं, f sin थीटा, है ना। तो यहाँ पे वर्क कहाँ पे हो रहा है, ये हम कैसे लिख सकते हैं, f वर्क डन कैसे लिख सकते हैं हम, वर्क डन इज क्या लिख सकते हैं, fx मतलब कौन f cos थीटा इनटू उसके साथ डिस्टेंस कितना हो रहा है s, ओके, प्लस f sin थीटा नीचे जा रहा है, f sin थीटा और उसके साथ डिस्प्लेसमेंट कितना, ये नीचे नहीं जा रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ s डैश का डिस्प्लेसमेंट, पर इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ कितना है, ये नीचे नहीं जा सकता, ये 0 होगा, है ना। ये तो हो रहा है, हम इसको लिख सकते हैं f s cos थीटा। ओके, सो दिस इज द वर्क डन बाय मैथमेटिकली मॉडल, क्या है f s cos थीटा। सो ये f s cos थीटा को हम साथ में क्या लिख सकते हैं हमेशा, वर्क डन इज f bar dot s bar, f bar dot s bar। डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या है, ये दोनों वेक्टर दे आर एक्टिंग along one direction only, in one common direction ही एक्ट कर, अगर नहीं एक्ट हो रहे हैं तो उसका हम कंपोनेंट लेते हैं जो एक डायरेक्शन में है। cos थीटा को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, what happens is that we happen to choose one common directions and their magnitude in that common direction. Ready? When you take the dot product or when you take the scalar product, what happens? We happen to take the values of the force and displacement which are in one direction only. Mathematically it comes out like that. When you take the components. Okay. So f dot s इसको हम वर्क डन बोलते हैं, और ये वर्क डन अगर एक ही डायरेक्शन में हुआ तो हम उसको पॉजिटिव वर्क कहते हैं। What do you call it? Positive work when it happens to be in one common direction only. अगर ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से मार्कर को यहाँ पे पुल कर रहा हूँ with my right hand, I am trying to push the marker in this direction, but at the same time I am pushing with the left hand, I am pushing in this direction, and let us say my left hand is more powerful, then what happens? Then I will say that my right hand, my right finger has not done positive work. What will I say? My right finger has not done positive work. Why? Because it is trying to push in horizontal direction, but displacement is not happening in horizontal direction, it is happening in negative direction. So when applied force is in one direction and its displacement is happening in other direction, then the work done by that force, like work done by my right finger, work done by my right finger will be not in the direction of the force, so it is negative because it is opposite either to the active's own direction of force. So we call it as negative work. So what are the types? Positive work and negative work. Yes. Positive work and negative work. These are the two types. So let us see. Work done is positive when F into S happen to be in one common direction. Like for example यहाँ से ऐसे कैसे भी हमने पुश किया तो यही पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना. Okay, so what is that? Work done is positive when they both happen to be in one direction, or you can take when theta is acute. When theta is acute मतलब क्या, less than 90 degree है ना. जब ये दोनों theta less than 90 degree हो तो work done is always positive. Yes, that is cos theta. Okay, we'll see an example. Okay, so let's see. This is force. Now the force is at 10 meters. और ये displacement है 5 meters. और ये angle है 30 degree, 60 degrees. तो force what is the work done here? Work
done is 10 newtons Fs cos theta, right? Fs cos theta. Force कितना है 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 न्यूटन, और सिस्टम कितना है हाफ 5 by 25 joules. What is 25 joules? 25 joules is the work done. 25 joules is the work done. So what is work done? Work done is 25 joules. Work done is 25 joules, and work done will be maximum and positive if the 10 newton should be in this direction. But yeah, positive है क्योंकि आइना एक्टिव है ना, तो ये इसको कॉमन डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन में फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो ये वर्क डन क्या होता है पॉजिटिव. ओके, सो वी हैव स्टडीड 3 टाइप्स, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, और एक वर्क होता है नेगेटिव वर्क. नेगेटिव वर्क मतलब क्या? अगर फोर्स यहाँ लग रहा है, इफ अभी जैसे 10 न्यूटन था यहाँ पे, ओके, विद एन एंगल 60 डिग्री, पर यहाँ पे एक अलग सा फोर्स है, जैसे बड़ा है 20 न्यूटन का, तो वो क्या करेगा, वो बॉडी को यहाँ पे भी डिस्प्लेस कर सकता है, यहाँ पे डिस्प्लेस करता है. तो क्या होगा एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट? तो फोर्स लग रहा है यहाँ पे और डिस्प्लेसमेंट कहाँ लग रहा है वहाँ पे. तो व्हाट इज एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? ये फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि हम ये फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं. ये फोर्स है वहाँ पे जो बहुत फोर्स तरह से रहते हैं, जैसे हम खड़े हैं यहाँ पे तो रिएक्शन फोर्स रहता है, ग्राउंड का फोर्स रहता है, आजू बाजू का फोर्स रहता है. हम यहाँ पे सिर्फ ये टॉपिक होती है फोर्स विच इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, और वी विल टेक ओनली द फोर्स विच वी आर अंडर स्टडी. ये फोर्स उसका एंगल देखिए क्या है, ये 60 डिग्री होता है यहाँ पे, और ये होता है 90 प्लस 60 90, ये 90 और ये 60 का एंगल कितना है बड़ा, बहुत बड़ा है ना. दिस इज नॉट पॉजिटिव वर्क. वी हैव टू टेक द स्मॉलेस्ट एंगल, है ना. ये स्मॉलेस्ट एंगल है. व्हाट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज द स्मॉलेस्ट एंगल दैट टेकन व्हेन दे आर प्लेस्ड टेल टू टेल. इसका टेल और इसका टेल साथ में रखेंगे तो इसका एंगल निकालेंगे तो वो थीटा होता है, और दैट थीटा इज द स्मॉलेस्ट एंगल. द स्मॉलेस्ट एंगल थीटा only the angle between the two vectors, and it will be, if it is obtuse, then work done is more than 80, more than 90, it's more than 90, so obtuse, theta is obtuse, angle is obtuse, so work done is negative. Work done is negative. Clear है? Yes. Work done is hence negative work. Okay. पॉजिटिव वर्क हुआ, नेगेटिव वर्क हुआ. अब जीरो वर्क क्या होता है? जीरो वर्क इज वर्क डन व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर एक्टिंग बट डिस्प्लेसमेंट इज नॉट हैपनिंग एट ऑल. डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे फोर्स है, यहाँ पे फोर्स है, दोनों इक्वल है. ये 10 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन है, तो क्या हो रहा है, ये फोर्स 10 न्यूटन अप्लाई कर रहा है, तो इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट कुछ दिख रहा ही नहीं. डिस्प्लेसमेंट x1 यहाँ पे था और x2 यहाँ पे था, तो डेल्टा x इक्वल्स टू 0. चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज नॉट हैपनिंग. डिस्प्लेसमेंट में चेंज नहीं, तो वर्क डन इज 0. वर्क डन इज 0. सो लेट्स मूव लिटिल फास्टर. वर्क डन बाय कांस्टेंट. ये वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्सेस है क्योंकि वहाँ पे फोर्स का वैल्यू हमें फिक्स पता था. और इसके बाद हम बात करेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स. वेरिएबल फोर्स मतलब क्या? यहाँ पे फोर्स फिक्स नहीं रहता है, फॉर एग्जांपल फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है. अभी हमने आपसे पीजी पढ़ा था, P into V था ना, प्रेशर इनटू वॉल्यूम था. तो ये एरिया अंडर दिस कर्व, उसके बारे में हमने बात किया था. वो क्या हुआ था? दिस वाज वर्क डन. व्हाट वाज दिस? वर्क डन. एरिया अंडर द प्रेशर वॉल्यूम कर्व्स के भी वर्क डन ना, उसी प्रकार एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट में क्या होता था आपको? वर्क डन. ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमने क्या सीखा? वर्क डन है. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अगर हमने सीखा कि वर्क डन है, तो उस ये एरिया क्या होता है? एरिया मतलब क्या? लेंथ इनटू ब्रेड्थ. अगर मैंने एक लाइन निकाली और ऐसे एक लाइन निकाली, दोनों का एरिया मैंने आपको पूछा, तो एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ. मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में करता हूँ जब मैं एरिया के बारे में बात करता हूँ. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हैपेंस टू बी वर्क डन. सो देन इज द एरिया. The area that is the force into distance. Okay.
force into displacement is your work done when we talking about area under the curve. So यहाँ पे ये force एक constant लाइन नहीं हुआ तो क्या होगा, अलग अलग टाइम पे एक बॉडी पे अलग अलग फोर्स लग रहा है. यहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो मैं मेरे को 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, थोड़ी देर में 3 न्यूटन लग रहा है, थोड़ी देर में 5 न्यूटन, जैसे कोई मुझे पुश कर रहा है तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग फोर्स हो रहा है. तो how to get this here to take the area under the curve. We have to take area under the curve. So this area under the curve is what? So this is telling about the work done. So ये work done है force into displacement. Force into displacement is telling you the work done, and this work done will be measured as the product of force into displacement is different and different. So ये अलग force है, अलग force है, अलग displacement है, अलग force है, अलग displacement है ना, अलग force अलग अलग displacement है. तो that work done will be summation of area. ये area से निकाल सकते हैं, नहीं चाहिए तो हम इसको अलग टेक्निक से भी निकाल सकते हैं. What is that? We can take integration. मतलब क्या कि ये फोर्स अलग अलग है, इसको हम विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट कैसे पुट करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल फोर्स इज गिवन बाय s स्क्वायर प्लस लाइक 3s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5. ये फोर्स है व्हिच इज डिपेंडेंट ऑन डिस्प्लेसमेंट. तो हम वर्क डन कैसे लिख सकते हैं, अलग एक फॉर्मूला f बार डॉट s बार है ना, f बार डॉट s बार. यहाँ पे डिफरेंशिएबल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं ds को क्या लेते हैं, डिफरेंशिएबल डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स क्या है 3s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या है ds बार. ds बार की हम थोड़ा सा ही डिफरेंशियल ले लेंगे तो उसको हम वर्क डन पे इंटीग्रेट करने के बाद क्या है 3s क्यूब बाय प्लस 2s स्क्वायर बाय 2 प्लस 5s. कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, लेट अस टेक 0 to 100 मीटर, 0 to 100 मीटर तक करना है. हम उसको इंटीग्रेट करेंगे 0 to 100, तो 0 to 100 इंटीग्रेट करने के बाद क्या आता है 100 क्यूब प्लस 100 स्क्वायर प्लस 5 into 100 माइनस ये 3 कैंसिल होना माइनस इसका भी 0 का वैल्यू पुट करेंगे, माइनस 1 ये वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा 0 क्यूब प्लस 0 स्क्वायर प्लस 5 into 0 ये तो 0 हो. तो इसका आंसर है व्हाटएवर आंसर इज कमिंग इज इक्वल टू द वर्क डन इन जूल्स. दैट is 10 to the power 6 plus 10 to the power 4 plus 5 10 to the power 2, that is 100,10,5,00. This will be the answer in joules. This is the answer in joules of the area under the curve. ये हमारा आंसर है for work done. Okay. Yes. See, हम लोग को वर्क डन के बारे में पता चला, वर्क डन के बारे में भी पता चला और हमको फोर्स के भी बारे में पता चला. सो एरिया अंडर द कर्व और इंटीग्रेशन कर्व. अभी हम इसके बारे में बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट. तो उसके पहले हमको सीखना होगा व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्सेस. व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्सेस? सी फॉर एग्जांपल कंजर्वेटिव फोर्सेस मतलब क्या, फील्ड फोर्सेस होते हैं. फील्ड फोर्सेस मतलब जिनका वर्क डन इज डिपेंडेंट ऑन द पॉइंट्स नॉट द पार्ट. फॉर एग्जांपल दिस इज अ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो इसको मैं ये डस्टर है यहाँ पे, तो ये डस्टर को मैं यहाँ से यहाँ तक लेके जा रहा हूँ. तो और ये डस्टर को ऐसे ऐसे मूव करके भी लेके ऐसे ऐसे मूव करके यहाँ पे लेके. तो दोनों केस में वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स अगर मैंने पूछा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन बोथ द केसेस, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन बोथ द केसेस विल बी सेम. अगर हमने एक बॉडी को यहाँ से यहाँ तक लेके गए, यहाँ से यहाँ तक लेके गए और यहाँ से ऐसे ऐसे नाचने में लेके जाएंगे, ऐसे 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 और यहाँ पे लेके गए, ठीक है. हाँ, तो दोनों केस में क्या होता है, वर्क डन यहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स पे कर रहे हैं बॉडी को नीचे, और आप क्या कर रहे हो बॉडी को ऊपर लेके जा रहे हो. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, आप ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी को नीचे खींच रहे हैं, पर आप बॉडी को यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ पे लेके जा रहे हो, तो क्या होता है, when you are trying to pull that body down, displacement is happening in the same way. जैसे हम यहाँ से ऐसे ऐसे मूव किया, हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में पढ़ा है. डिस्टेंस मतलब क्या, ये पूरा पाथ का मेजर है. डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब क्या, इधर से इधर तक ये डिस्प्लेसमेंट होता है ना. तो डिस्प्लेसमेंट इज ओनली दिस मच,
is only distance. So work done, यहाँ पे उतना ही force लगता है, body का displacement उतना है, यहाँ पे भी इतना ही force लगता है, body का displacement भी उतना ही है. तो दोनों cases में work done will be is some force mg नीचे लग रहा है, displacement के ऊपर h height है, और यहाँ पे भी force लग रहा है नीचे mg और displacement के ऊपर h. mg and h force is work done in both the cases. दोनों cases में work done in mg है ना. So work done is not dependent on the path, it is dependent only on the point. So these forces, ये mg force ऐसा है कि उसकी वजह से क्या हो रहा है, this work done उतना ही हो रहा है. तो ये ऐसा जो force है जहाँ से work done constant रहता है ना, तो वैसे forces को हम conservative forces बोलते हैं. मतलब क्या वहाँ पे work done remains conserved at 2 points, it remains conserved. 2 पॉइंट्स के बीच में हम जो कुछ काम करेंगे वो उतना ही रहेगा, जैसे भी करो जैसे भी लाओ यहाँ से कंजर्व रहेगा, पॉइंट्स के हिसाब से कंजर्व, पॉइंट फंक्शन है. तो वैसे फोर्सेस को हम कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं. अगर हम एक दो केस में फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बात करें तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, देखो यहाँ से यहाँ तक तो फ्रिक्शन अपोज करेगा तो हीट विल बी प्रोड्यूस. अगर ऐसे 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 करके यहाँ पे जाओ तो क्या होता है, हीट को ज़्यादा आएगा बॉडी में, है ना, और हीट विल बी कमिंग होने बॉडी में ज़्यादा डिस्टेंस करते तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा. यही बात की थी. तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स मोर इन दिस केस, लेस इन दिस केस. So it is different in both the cases. What about work done by gravitational force? It's same. So gravitational force is always conservative force, is not the spring or not the friction force. Friction force not conservative or gravitational force conservative. So और एक definition है conservative forces के बारे में, हाँ, that is the differentiation of the potential energy with respect to displacement. तो हमने क्या किया, हाँ, अभी ये हमने पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन सीख रहे हैं. तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेटिव फोर्सेस का डेफिनेशन देखा हमने. व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्सेस, दैट फोर्सेस इन व्हिच वर्क डन इज डिपेंडेंट ओनली ऑन 2 पॉइंट्स, इनिशियल एंड फाइनल. और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, व्हाटएवर वर्क यू डू, जैसे मैंने कहा, द डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट, कंजर्वेटिव फोर्सेस का और डेफिनेशन हमने क्या देखा, द डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, और वो नेगेटिव है. तो ये दो डेफिनेशन से कंजर्वेटिव फोर्सेस के, ये वाली हमने सीखा है. ये पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू डेफिनेशन कंजर्वेटिव फोर्सेस का क्या है, दैट फोर्सेस on which the work done is dependent on points, and all it has the differentiation of potential energy, the differentiation of potential energy with respect to displacement, and its negative value. It's negative value. Okay. So negative value हमको बाद में देखेंगे. पहले differentiation of potential energy with respect to potential energy क्या है, mg h, और इसका हमने differentiation किया with respect to displacement. तो क्या है, हमको वैल्यू क्या है, हमारा वैल्यू क्या है, mg है, और mg क्या है, तो नीचे माइनस में. तो इसका हमने नेगेटिव डेरिवेटिव लिया, तो हमें क्या पता चलता है, वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्स. तो हम पोटेंशियल एनर्जी को विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट डिफरेंशिएट करें तो फिर भी हमें फोर्स जो मिलता है वो अगेन दैट फोर्स इज आल्सो कॉल्ड एज कंजर्वेटिव फोर्स. तो ये दूसरा डेफिनेशन कंजर्वेटिव फोर्स, दूसरा फोर्स कंजर्वेटिव, दूसरा डेफिनेशन कंजर्वेटिव फोर्स. और क्या, सो अगर देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, और क्या है पता हमें, क्या पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखा, पोटेंशियल एनर्जी mgh, फोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और पोटेंशियल एनर्जी, यस, पोटेंशियल एनर्जी we can have as two types, gravitational potential energy, spring potential energy. Gravitational potential energy कैसे होता है, mgh, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल डिस्प्लेसमेंट है ना. और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स और स्प्रिंग डिस्प्लेसमेंट. हमने इलेक्ट्रिसिटी में देखा है, स्प्रिंग फोर्स और kx, इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू kx का मतलब क्या है, kx²/2. तो kx²/2 इज आल्सो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी. mg is also gravitational potential energy. So potential energy के अलग अलग फॉर्मूले हैं. Yes. So even when these all have formulas for
potential energy, we see that potential energy is energy that is stored, energy that is stored. Stored क्यों होता है? क्योंकि देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बॉडी को एक फोर्स से नीचे जाने वाला, फिर भी हम बॉडी को ऊपर रखेंगे. दैट मीन्स व्हाट, वी आर अप्लाइंग एक्स्ट्रा फोर्स देन ग्रेविटेशनल फोर्स. हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स से हम एक्स्ट्रा फोर्स कर रहे हैं ना. देखो हम बॉडी को नीचे, बॉडी गिर रहा है, फिर भी हम उसको ऊपर उठा के रख रहे हैं. तो इसका मतलब क्या होता है? दैट वी आर नॉट अलाउइंग द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी टू डू वर्क. So gravitational potential energy means gravitational force is going down, but displacement is happening upwards. So work done by gravitational force will be negative. Work done by gravitational force is negative. So whenever you see that negative work is done, whenever you see that negative work is done by the conservative forces, so it is not appearing in any form outside. It is not appearing in any form and outside. It is not manifesting in any other form of energy. So ये वर्क डन का है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसका आउटपुट आ गया है, तो मूव भी नहीं कर रहा है, तो वर्क डन हो रहा है. सो व्हाट यू कैन से इज दैट व्हेन you do work, when conservative forces do work while moving an object from one point to another, then the energy work done is not converted in any form. If it is not converted in any form, that means it is stored inside that object. Stored inside that object. So mgh work is done on the body that will be stored in that object. So we can call it as what? Work done by conservative forces is stored inside the object in the form of potential energy. So spring potential energy and gravitational potential energy both are occurring due to gravitational forces or conservative forces. Yes. Okay. और क्या हमने what is kinetic energy? Kinetic energy like for example एक river बह रहा है, यहाँ पे lots of fluid है, तो this can do work. एक force इसके ऊपर force लग के body move हो सकता है, so you can measure it out. Its energy, its work can be measured. That means it has got some capability to do the work. The river has got some capability to do the work. So when river has got some capability to do the work, that means river has got energy. And ये energy कहाँ से आ रही है? रिवर बह रहा है तो ये बहते हुए पानी की वजह से आ रही है. दिस एनर्जी इज व्हाट? काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज बाय वर्च्यू ऑफ द मोशन. अगर यही ब्लॉक ऑफ फूल हम एक हाइट पे रखते हैं और उसको छोड़ते हैं तो फिर भी वो गिरता है ना. तो यहाँ पे हम तो इसको नीचे लेके नहीं आ रहा है, कभी भी वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आ रहा है. तो वही ग्रेविटेशनल फोर्स जिसके अपोजिट में काम किया था ऊपर माइनस mgh, वो कन्वर्ट हो रहा है नीचे आते हैं, तो ये वर्क डन हो रहा है. यहाँ पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी. यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज डूइंग द वर्क. यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फ्री फॉल इज डूइंग वर्क, काइनेटिक एनर्जी इज फ्री फॉल इन द फॉर्म ऑफ वर्क. सो okay, so what is that? Is mgh. And so you can see what is work done goes into displacement, and this force is dv by dt done. Displacement is dx dv में क्या रहता है? m into dv रहता है. dx में dt फिर से क्या हुआ? d. so mv dv को हमने इंटीग्रेट किया, ये क्या है? v को हमने इंटीग्रेट किया, ये क्या है? mv square by 2. तो अगर इंटीग्रेट किया तो हम इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स. mv square by 2 is what? वर्क डन. वर्क डन हो रहा है ना, तो वर्क डन कैसे मैनिफेस्ट हो रहा है? mv square by 2. इसका मतलब mv square by 2 क्या होगा? उसकी एनर्जी होगी, क्योंकि वर्क डन हो रहा है, ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना उसके ऊपर, तो उसको मोमेंटम चेंज हुआ. तो व्हाटएवर वर्क डन इज बिकॉज ऑफ दिस क्वांटिटी. तो ये क्वांटिटी को हम क्या बोल सकते हैं? दैट क्वांटिटी इज टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी ऑफ वर्क डन, एंड हियर इट इज बाय द वर्च्यू ऑफ मोशन, सो वी कॉल दिस काइनेटिक एनर्जी. जहाँ पे जैसे हमने mgh सीखा वैसे हम mv स्क्वायर बाय 2 भी हमने सीख लिया. ये होता है काइनेटिक एनर्जी और mgh है पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी सीखा हमने. अब हम देखेंगे व्हाट इज वर्क एनर्जी थियरी. वर्क एनर्जी थियरी इज वेरी ब्यूटीफुल हियर बिकॉज इट्स एप्लीकेशंस आर वेरी वास्ट. First, before going for work energy, should we see this?
relationship? Yes. What is kinetic energy? Just know it's of half mv squared. Yes. What is momentum? P equals m into v. ये भी काम है. तो अब हम क्या करते हैं? We will see that if we multiply kinetic energy, it is half mv square on both sides by mass. यहाँ पे क्या है? half m square p square by m equals to k. अब क्या करते हैं हम? ये 2m को यहाँ से मल्टीप्लाई करें. 2 m equals to p square. This is the important. This is the important relationship between kinetic energy and potential energy, which will be useful to solve the problems. Like for example, we take a problem when the momentum is increased by 2 times. How many times the kinetic energy increases? Okay, so we have this formula. So we can write ये formula को rearrange करके लिख सकते हैं k equals p square by 2m, है ना? फिर kinetic momentum increases 2 times. तो क्या हुआ? k1 हुआ. तो हम दो सिचुएशंस है ना, तो दो सिचुएशंस को स्टडी करने के लिए हम क्या सीखा है? कंपेयरिंग मेथड. k1 equals p1 square by 2m1 और k2 equals p2 square by 2m2. दोनों को डिवाइड करो, k1 upon p2 करो, तो क्या मिला आपको? p1 square by 2m1 upon p2 square by 2m2. मेरे मास तो सेम ही बॉडी है, तो क्या रिलेशनशिप मिला? p1 by p2 का होल स्क्वायर. तो वो p1 by p2 का होल स्क्वायर आपको मिला है. तो हमने क्या किया? मोमेंटम इंक्रीज बाय 2 टाइम्स. तो क्या हुआ? ये p हुआ तो ये 2p1, तो इसका स्क्वायर होगा. ये क्या हुआ? 1 by 4 टाइम्स. क्या हुआ? 1 by 4 टाइम्स. तो काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 4 टाइम्स. काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ? 4 टाइम्स हो गया है. क्यों? जब मोमेंटम 2 टाइम्स हो तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स होता है. तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे. तो यहाँ पे याद रखो कि काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हुआ. यही क्वेश्चंस में आता है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय हाउ मेनी टाइम्स. तो व्हेन काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 4 टाइम्स, इट इज इंक्रीज बाय 3 टाइम्स. यहाँ पे ये भी एक क्वेश्चन परसेंटेज के बारे में पूछते हैं. व्हाट इज द चेंज इन परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी? सो नाउ द चेंज इन परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज 300 टाइम्स. ओके, सो such type of questions are asked many. ओके, तो अब हम देखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम और उसके एप्लीकेशंस. वर्क एनर्जी थ्योरम को बहुत ब्यूटीफुल थ्योरम बोलते हैं क्योंकि उसके कहाँ पे भी यूज कर सकते हैं. व्हाट इज दैट? वी नो दैट v square is equal to u square plus 2as, है ना? v square equals to u square plus 2as. इसका क्या है? v square minus u square equals to 2as बोल सकते हैं ना. दोनों साइड्स को मास से मल्टीप्लाई करो. मास मल्टीप्लिकेशन on both sides. Mass multiplication on both sides. What do you get? mv square minus mu square equals to 2m(a)s. ये m मतलब क्या है? वो बॉडी का रिस्पांसिबिलिटी ऑफ फोर्स. और ये क्या है? s. और ये वेक्टर है. तो वेक्टर तो न्यूटन सेकंड लॉ में कहा था हमने कि फोर्स एक्सेलरेशन बॉडी का कोई डायरेक्शन में होता है जो डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं. तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में होगी. सेम डायरेक्शन में होगी तो इसका प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट होगा. डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क होता है 2 into वर्क डन. यस, इक्वल्स टू ये 2 हमने क्या लिखा? mv स्क्वायर माइनस mu स्क्वायर. दोनों को 2 से डिवाइड करो तो हाफ mu v स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर इक्वल्स टू वर्क डन. व्हाट इज वर्क डन? ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है. तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. तो kf माइनस kr इक्वल वर्क डन. Work done is nothing but what? Change in kinetic energy at 2 different situations. तो दो situations के बारे में हम काम देख रहे हैं. तो work done in that 2 situations will be equals to change in kinetic energy. ये इतना interesting है work energy theorem that this force which we are talking about includes of all the kinds of forces. या किसी वो बॉडी पे लगने वाले सभी forces को हमने समेशन किया है. ये वेक्टर है. हाँ, सो सभी इसका फोर्स का डिस्प्लेसमेंट हमने समेशन किया. सो यू सी दिस डिफरेंट इन काइनेटिक एनर्जी. मतलब क्या कि हम एक बॉडी में यहाँ पे इसकी वेलोसिटी का मतलब पता है तो हमको इसकी काइनेटिक एनर्जी पता होगी. ठीक है, और इसके बारे में बात नहीं, बॉडी कहाँ तो जा रहा है, उसका वेलोसिटी भी है, तो इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी पता चला. तो इफ यू जस्ट डू द डिफरेंस इन kf minus ki, हमको सिर्फ इसकी वेलोसिटी देख के इसका काइनेटिक एनर्जी का
ड्यू टू ऑल काइंड्स ऑफ, मतलब ये ऐसे फोर्स हुआ फिर बॉल को ये इसने मारा फिर बॉल उसने मारा तो ये बॉल ऐसे हुआ कैसे कैसे, तो in this difference in these two situations includes work done on this ball by all the forces, जो कुछ फोर्सेस इस पे एक्ट हो गए तो सभी के फोर्सेस की हमने वर्क डन हमने कैलकुलेट करे ना, करे वर्क डन हमने कैलकुलेट करे, so it includes work done by all the forces, so इसकी फोर्स को इसलिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को लिखते हैं summation of work done by all the forces, summation of work done by all the forces, कहाँ पे यूज होता है ऐसे सिचुएशंस में, और it also helps in finding work done, like for example क्या बात कर रहे हैं तो we see that एक वर्क डन बॉल पे ऐसा बॉल पे ऐसा फोर साइड हो गया तो इसका फाइनल वेलोसिटी पता चला तो वर्क डन की मदद गिव द फाइनल फोर्स वर्क डन, ऑल्सो दैट फॉर एग्जांपल एक बॉडी से यहाँ से रोल कर दी तो यहाँ से जाके यहाँ तक इसका वेलोसिटी कुछ तो आ जाएगा ना, सो यू विल हैव सर्टेन वेलोसिटी, तो इसका वेलोसिटी यहाँ का आ गया सब्ट्रैक्ट करा हमने तो we will actually get work done by all the forces acting on it, so situation कहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं हम, कैसे भी पाथ होगा क्योंकि यहाँ पे देखो ये काइनेटिक एनर्जी क्या है, दिस इज v स्क्वायर है, यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमें पता नहीं है ना, सॉरी डायरेक्शन हमें पता नहीं है क्योंकि v स्क्वायर हो जाता है तो वो स्केलर हो जाता है, जस्ट बाय नोइंग विदाउट इवन नोइंग द डायरेक्शन यू कैन एक्चुअली टेल वर्क डन ऑन इट, तो वर्क डन भी स्केलर है और ये भी स्केलर क्वांटिटी है, तो ये कहाँ पे भी हम वेक्टर्स को डायरेक्शन कैसे भी चेंज हो जाए तो हम ये वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं और सीधा आपका आंसर भी दे सकते हैं, क्योंकि दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, लाइक फॉर एग्जांपल ऐसे रोल और बैट हम यूज कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग पे हमने एक दूसरा ब्लॉक लेके इसको हमने थ्रो किया, थ्रो करने के लिए इसके पास वेलोसिटी तो काइनेटिक एनर्जी है ना, तो दिस काइनेटिक एनर्जी ये कुछ यहाँ पे आएगा, ये स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कुछ वर्क डन करके आएगा, सो इसमें लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज नॉट काइनेटिक एनर्जी, इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कुछ तो है और यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी लेट्स से हाफ एम वी स्टॉप हो रहा है, हाफ एम यू स्क्वायर है, व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये देखो हम काइनेटिक विल अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम, दैट इज वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी क्या है यहाँ पे डिफरेंस इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे हाफ एम फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, सो व्हाट इज द वर्क डन, सो ये बॉडी पे हो रहा है, इसका ब्लॉक का वेलोसिटी था बाद में कुछ नहीं है, सो व्हाट इज द वर्क डन ऑन दैट ब्लॉक, दैट विल बी इक्वल्स टू वर्क डन ऑन दैट ब्लॉक बिकॉज़ ये स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है ना, स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है, ये स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है तो ये इसके ऊपर लग के स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है ना, तो वर्क डन ऑन स्प्रिंग, वर्क डन ऑन स्प्रिंग, स्प्रिंग पे हमने वर्क डन अभी देखा हो क्या था, हाफ के स्क्वायर था ना, हाफ के स्क्वायर था, ये तो 0 हुआ, सो हाफ एम टी स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ के स्क्वायर, मतलब हमको स्प्रिंग कांस्टेंट पता है, इसका डिस्प्लेसमेंट हमने मेजर किया तो हमको इसको वेलोसिटी मिल सकता है जो शुरू में था, देखा कितना इंटरेस्टिंग, और अगर हमको अगर वेलोसिटी मालूम है तो ये वेलोसिटी पे थ्रो करनी है तो स्प्रिंग कितना कंप्रेस होगा तो ये हम पता कर सकते हैं, ठीक है, सो लेट अस सी एन एग्जांपल, so let us take the mass of 2 kg with 3 meters per second is incident on a spring with constant 20 newton per meter. Find the compression in spring. Compression in spring. Okay. Spring में compression हमको निकालना है. So we can do half mass कितना है 2 velocity कितना है 3 का square equals to half spring velocity कितना है 20. Okay. हमको क्या पता चलेगा उसका x पता
स्पेसिफाइड वैल्यूज मोशन है, यहाँ पे है बॉडी नीचे गिर रहा है, कहाँ पे भी कर सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम मोशन में। मोशन जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे अपने मोशन वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करके वो उस बॉडी पे काइनेटिक एनर्जी देख के कैन टॉक अबाउट इट्स वर्क डन। दिस वर्क डन इंक्लूड्स ऑल द टाइप ऑफ वर्क डन में कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, फ्रिक्शन फोर्स, सभी फोर्सेस को हमको लेना है अपना। रिमेंबर दिस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो मिलेगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मिलेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी देखेंगे, मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी मतलब क्या कि जो कुछ एनर्जी हम बॉडी के सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं तो इट रिमेन्स सेम, मतलब क्या कि अगर एक बॉल को हम नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं तो उसका एनर्जी के बारे में बात करें तो देखो बॉल जब थ्रो करते तो उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहता, काइनेटिक एनर्जी रहता है, तो बॉल ऊपर जाने के बाद काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाता है, मोशन ही नहीं रहता है, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। सो इट इज टॉकिंग अबाउट दैट एनर्जी रिमेन्स कंजर्व, टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। तो एक एनर्जी कम हो रहा है उसका मतलब वो दूसरे एनर्जी में जा रहा है, मतलब उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है या तो फिर उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या तो फिर any other kind of energy is increasing. So in this case, if you don't know the work, so just by merely observing one decrease in one kind of energy, you can say that other form of energy is increasing. So you can measure that increase in energy. You can measure that increase in energy. तो वो value हमको पता चलता है. Just for example, ball is on earth, so plus kinetic energy है, ऊपर जाके वो क्या हो जाएगी? Potential energy जाएगी. Not only your spring constant में होता है, एक body move करे तो उसको kinetic energy वो जाके spring को compress करेगी, spring potential energy मिल जाएगी. लेकिन फिर उसके बाद में friction force है तो frictional heat loss होगा. You can use it again. For example, your devices like instruments like your cooker, oven, geysers, AC, TV. तो यहाँ पे एनर्जी होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. So that electrical energy you can see, you can measure that energy, right? So this energy is remains constant. Okay, so वहाँ कहाँ से भी आएगा तो उसमें. And then you have energy mass equivalence. Means what? Energy mass equivalence means equal to means what? That if you take like in radioactivity level, you have the uranium atom. Uranium atom का मास कम होता है ना, इसका मास कम होता है थोड़ा, मास कम होता है तो वो कहाँ पे जाता है? इक्वल टू द फॉर्म ऑफ एनर्जी. एनर्जी तो मास कम हुआ कितना डेल्टा एल हुआ, तो डेल्टा एल को c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो इतना एनर्जी बाहर, एक्सप्लोजन, हीट, साउंड एनर्जी, सभी फॉर्म्स में एनर्जी बाहर निकलेगी. Because that mass is getting completely vanished. तो vanish नहीं होगा वो, it comes out in the form of energy. So this was given by this equivalence. Can use it in radioactivity, nuclear energy, all these situations. Its derivation is there, by इसका derivation है तो Lorentz transformation से आता है. And in that derivation you are using that mass को हम study करते हैं space में high velocity से वो move हो रहा है तो उसको high velocity से वो mass अगर move होता है तो वेलोसिटी विदाउट एक बॉडी, वेलोसिटी तो एब्सोल्यूट होता है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट. अगर हमने बहुत हाई वेलोसिटी से मूव करा तो उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से आएगी? नहीं आ सकती ना. सो बिकॉज वेलोसिटी इज कांस्टेंट, विदाउट एनी फोर्स यू कैन नॉट सी चेंज इन वेलोसिटी. तो वेलोसिटी तो एब्सोल्यूट होता है, पर अगर हम अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा तो हमको ऐसा दिखता है कि वो बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो रहा है. सो दिस इज बिकॉज सम फोर्स ऑफ अप्लाइड, दैट मींस वर्क इज डन, दैट मींस एनर्जी आ रहा है. तो वो तभी हम ऐसे स्टडी करके उसके ऊपर एनर्जी निकालते हैं तो वो इक्वल टू एक्सिस पर होता है. दैट मीन्स व्हाट, दैट मास अगर स्टेडी है तो उसमें रेस्ट मास है तो उसमें इतना एनर्जी स्टोर हो सकता है. ऑल दैट एनर्जी विल बी रिलीज व्हेन यू डिस्ट्रॉय दैट मास कंप्लीटली. दैट इज इटसेल्फ विजिबल इन न्यूक्लियर एनर्जी एंड द मास इज एक्चुअली वैनिशिंग, बट इट इज कमिंग आउट इन द फॉर्म ऑफ इट्स एनर्जी इन ऑल दिस केसेस. और लास्ट पार्ट है हमारे पावर, इज दैट पावर इज नथिंग बट एबिलिटी टू डू वर्क इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम. टू डू वर्क इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम. यस. सो whatever work you see that is happening, if you just rate it up. rate it up मतलब क्या? कितने में कितना हो रहा है, कितने टाइम पे कितना हो रहा है, कितने टाइम में कितना काम कर रहा है, या बहुत काम कर रहा है, या
वर्क करता है या रैपिड करता है, सो यू जस्ट वेट कर एंड यू रेडी अप इसको रेडी अप करो वर्ड कितने टाइम में व्हाट अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स, सो दिस इज वर्क डन. इट इज हेल्पफुल in studying the practical observations, like for example, if you have a device, then what amount of work it can do in a given amount of time. Okay, तो ये है और एक है तो वर्क इज गिवन बाय डिफरेंशिएशन मेथड दैट इक्वल्स टू क्या है एम ए एंड इज योर वर्ड dp by dt. सो इसको हम क्या कर सकते हैं into S, so we have dmd by dt S and dv by dt into S equals to work done. So m dv by dt is equal to dv by dx by dt into S. What is dx by dt? Dx by dt is again d, so m d dv by dx. We'll have the force की रखेंगे इसको force की रखेंगे displacement को निकालेंगे. Okay, so what now we will do, ये ds को यहाँ पे लेंगे f into ds is equal l d dv. दोनों साइड में इंटीग्रेट करो, so इंटीग्रेशन f ds is equal इंटीग्रेशन of m d dv, right? इसका इंटीग्रेशन क्या है m d square by 2 इनिशियल टू फाइनल. ये व्हाट टोटल वर्क है, ये भी एक अलग मेथड है फॉर डिराइविंग वर्क डन बाय डिफरेंशिएशन मेथड. यहाँ पे हम कैलकुलस मेथड यूज़ करके वर्क डन निकाल सकते हैं. दैट इज़ वर्क एनर्जी थ्योरम का दूसरा एक